اور پھر اس کا کرم اور احسان عظیم دوسری ہمیں دین اسلام عطا کر دیا. ہمیں کوئی بت پوجنے والا نہیں بنایا، ہمیں وہاں پیدا نہیں کر دیا. گائے کی پوجا کرنے والوں میں ہمیں پیدا نہیں کر دیا، سورج کی پوجا کرنے والوں میں ہمیں پیدا نہیں کیا، بتوں کی پوجا کرنے والوں میں ہمیں پیدا نہیں کیا. تو بہت بڑی آزمائش ہے. جب ایسے دینوں میں چلے جائیں پھر ایک دین کو ڈھونڈنا بڑی آزمائش ہے. اللہ پاک نے اتنا کرم، اتنا احسان، اتنا فضل عظیم ہم پہ فرمایا کہ ہمیں الحمدللہ دین اسلام میں پیدا فرمایا. لیکن بات یہ ہے، ایک چیز بندہ ڈھونڈ کے جب تلاش کر کے چیز کو لیتا ہے نا تو اس کی قدر بڑی کرتا ہے. اور ایک بغیر مشقت کی یہ چیز مل جائے نا، انسان ہے نا اس کی قدر کم کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں مشقت سے مل جائے قدر اس کی بڑی ہوتی ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بغیر مشقت کے اللہ اور اس کا رسول اور دین اسلام مل جائے اسے اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ حجرہ مبارک میں میرے لحاف میں تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے قریب تھے، یعنی بالکل قریب آقا علیہ السلام میرے تھے، جلوہ فرما تھے. تو نبی علیہ السلام ایک دم سے اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، باری آپ کے حجرہ آپ کے میں جلوہ فرما ہوں، آپ کے حقوق ہے میرے پہ، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اٹھ کے جائے نماز پہ چلا جاؤں، میں مصلی پہ چلا جاؤں، میں اللہ سے ملاقات، اللہ کی عبادت کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ آپ پہ قربان، ماں باپ آپ پہ قربان، جیسے آپ راضی میں راضی. حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کو بیان فرماتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، پانی کی طرف تشریف لے گئے، کچھ تھوڑے سے پانی سے، زیادہ پانی نہیں، تھوڑے سے پانی سے حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا. یہ احتیاط آپ لوگ بھی کیا کریں، ہم بھی کریں، آپ بھی کیا کریں. اب ہمیں اللہ نے وافر پانی دے دیا ہے تو ہم دیکھیں نا قدر نہیں کرتے، لیکن یہ سوچتے نہیں کہ جو وافر چیز بھی آ گئی صاحب تو اس کا بھی دینا ہے. یہ تو نہیں اب آپ ایک لوٹے سے کام آپ کا بن سکتا ہے، ایک کپ یا ایک مگ سے آپ کا کام چل سکتا ہے، تو آپ وہاں 5 مگ استعمال پانی کے کریں تو کیا آپ نے حساب نہیں دینا؟ یہ چیزیں تھوڑی سی جان، کیونکہ وضو ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ وضو کی ضرورت سے کم پانی استعمال کریں گے وہ بھی وضو مکروہ ہو جائے گا، اور وضو کے پانی سے جتنا وضو ہو جاتا اس سے آپ زیادہ پانی استعمال کر لیں گے پھر بھی مکروہ ہو جائے گا. تو جب ہماری ابتدائی نماز میں وضو ہے تو وضو ہی ہمارے مکروہات پہ چلے گئے تو ہمیں نماز کی لذت بھی تو اتنی سی ملنی ہے. پھر نمازوں میں جی بھی اتنا ہی لگ رہا ہے، نماز میں جی بھی تو پھر اتنا ہی لگنا ہے جب ہماری ابتدا ہے پاکی، جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اور پھر اس کے بعد اگلی شرط کیا ہے؟ وضو. اور اس وضو کے اندر ہمیں یہ طریقہ سیکھنا ہے وضو کرنا کیسے ہے. کلی 3 بار کریے تو چوتھی بھی کر لی، چوتھی بار کیے تو 5ویں بار بھی کر لی. یہ اسراف ہے، کیونکہ عدد مسنون جو ہے وہ 3 ہے. ایک بار کرنے سے آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، ایک بار کلی کی فرض پورا ہو جائے گا. کلی فرض نہیں ہے، فرائض میں سے آپ چلتے ہیں. ایک بار آپ 4 فرض ہیں نا وضو کے، تو آپ چاروں فرضوں میں سے ایک بار اسے دھو لیتے ہیں نا تو وہ وضو ہو جائے گا. لیکن 3 بار کرنا سنت مصطفیٰ علیہ السلام، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے ہمیں عدد مسنون مل جائے گی. آپ کا وضو اچھا ہو جائے گا اور نماز زبردست ہو جائے گی.
तो 3 बार से अगर आप अदद मसनून से यानी सुन्नत अदद से ऊपर चले जाते हैं, मतलब 3 बार कुल्ली करनी थी तो चलो फिर कुल्ली कर ली, फिर कुल्ली कर ली, 5 बार कर ली। नाक में पानी डाला तो बाज ने एक ही चुल्लू में पानी लिया तो 3 बार नाक में ऐसे कर लिया, ये सुन्नत पूरी नहीं हो रही। 3 बार अलग पानी ले, लेकिन थोड़ा पानी लेके आपका नाक में पानी चढ़ सकता है, आप पूरा भर के ना भी ले, नॉर्मल सा इस चुल्लू में पानी ले लें। तो 3 चुल्लू आपने नाक में जो डालने हैं ना, इनमें चौथी बार भी डाल लिया, आप फिर 5वीं बार भी डाल रहे हैं। अब ये आप सुन्नत की आदत से गुजरती जा रही है, वुजू की तरफ जा रहे हैं, मकरूह तहरीमी की तरफ, मकरूह तक जा रहा है आपका वुजू। चेहरा है उस पर आपने अब साबन लगा लिया, साबन लगाने के बाद 3 बार धोया ही नहीं जाता, वो 7-8 बार धोना पड़ता है। अब आपने वुजू में फिर अदद मसनून से ऊपर चलेंगे कि आपका, अगर आपने ब्रश कर लिया फिर आपकी कुल्लियां 3 नहीं है, वो 3 से ज्यादा हो जाएंगी, फिर आपका अदद मसनून से ऊपर चला गया। जब 3 के अदद से आपका ऊपर जा रहा है तो ये आपका वो जो अदद सुन्नत है उससे हट जाएगा, और उससे ऊपर जब आपकी तादाद चली जाएगी तो ये सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए ऐसा करें कि आप वुजू से पहले ब्रश कर लें, कुलियां कर लें जितनी गर्मी जितनी जरूरत है, साबन से मुंह धो लें, धोना जितनी बार धोना है, लेकिन वो भी इतना बार ना धोए जितनी जरूरत है। उसके बाद नियत करें कि या अल्लाह करीम आपकी रजा पाने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए मैं वुजू कर रही हूँ, कबूल फरमा लें। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। अगर आप वॉशरूम में वुजू कर रहे हैं, जैसे हमारे गठे अटैच बने, वहां आप जुबान से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे जी, आपने मुंह बंद रखना है, दिल में पढ़ लें, दिल में लीजिए, दिल में बिस्मिल्लाह, जुबान से ना पढ़े। और बड़ा बेहतर है कि अगर आपका वॉशरूम अलग हो, आपका वुजू खाना अलग हो, यानी जिस तरह वॉशरूम से बाहर आते कोई बेसन लगा या कोई आपके पानी वाली टूटी वाली जगह बनी है, बेहतर है वहां बैठ के कर ले, वहां फिर आप अपनी जुबान से सारी दुआएं इजीली पढ़ सकते हैं। तो जिनके घरों में ये चीज नहीं है वहां मुश्किल है, वो फिर अंदर वॉशरूम में बेसन में वुजू करेंगी, तो वहां वो मुंह में नहीं, जुबान से नहीं, दिल में ही दुआएं पढ़ेंगी, दिल में नियत करेंगी और दिल में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगी। अब आप वुजू शुरू करें तो फिर आप 3-3 बार सारे काम करें। अब आपका सुन्नत वुजू चल रहा है। अब ये देखें कि अगर टूटी है, टूटी से ज्यादा हम लोग वुजू करते हैं, आप अगर बाएं हाथ टूटी पे रख लें, दाएं हाथ से पानी डालें, कुल्ली करें, जब कुल्ली के लिए आ रहे तो बाएं हाथ से वो टूटी बंद कर सकती है। ये मैं कर सकती हूँ, फिर आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं अपना तजुर्बा शुदा चीज आपको दे रही हूँ। देखिए ना, मेरा अपना अंदाज जो है ना, ऐसे टूटी खोली, चुल्लू पानी का भरा टूटी बंद करके फिर मुंह में डाल ली, कुल्ली फेंक ली, फिर टूटी खोली, फिर पानी लिया, फिर चुल्लू मुंह में डाल लिया, ये खुल रही। अब हमारा नाक में पानी भी ऐसे जाएगा, कुल्ली भी ऐसे हो जाएगी। हाँ, चेहरा धोते हुए मुश्किल है, कुछ तो से पानी लेना होता है, वो आपको फिर एहतियात रखनी होगी कि छींटों की, ज्यादा छींटे मुंह पे जोर से ना मारे कि वो आप पर छींटे पड़े, इस छींटों से बचे, पर ये छींटे नापाक नहीं होती, ठीक है, उसका अमल जरूर होते हैं, नापाक नहीं होते। अब ये बालों की जड़ से लेकर थोड़ी तक और इस कान की इस हड्डी से लेकर इस कान की हड्डी तक आपका पानी बह जाना जरूरी है। वुजू वो आपने जिस तरह लेके पूरे पे फैलाना है पानी, वो एहतियात आपने देखनी कि मैंने किस तरह से करना। अब आप बाजुओं पे आ गए, बस लोग ने अपना एक तरीका बनाया, इस तरह पानी लिया, ऐसे किया, ऐसे लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, वो 3 बार, यहाँ तक हमारा पानी बहता नहीं। अगर किसी को बड़ा तजर्बा हो ना, बड़ी ट्रेड मास्टर हो, वो चुल्लू ऐसे पानी में लेके फिर वैसे कर लेती। फिर क्योंकि हर लूम पे, हर बाल पे पानी बहना जरूरी है। अगर आपके अज़ाए वुजू में से खास तौर पे जो फ्राई से वुजू है, उनमें आपके एक बाल भी खुश्क रहेगा तो वुजू नहीं होगा, और वुजू ना हुआ तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब आप बेहतर है टूटी थोड़ी कर लें, उसकी मिकदार थोड़ी कर लें, यहाँ हाथ से चले, कोनी तक धो लें, यहाँ आए 2 बार, यहाँ आए तो 3 बार पूरा होगा, ये आपकी हड्डी धुल जाए, ये चीज अंदर शामिल है। धोने, इस धोने के बाद फिर चुन्नू पानी का लेके हाथ को तर करना है, और इन 3 उंगलियों के साथ आपने अपना मसा ये शुरू कर देना, यहाँ तक जितना पीछे आपका हाथ जितना भी जा सकता है, आपकी चुटिया से भी नीचे जा सकता है, जहाँ तक जा सकता है ले जाए। चौथा फर्ज है, पूरे सर का सुन्नत है, आप पूरा ले जाए। अब ये उंगली बच गई, आपने टच नहीं करनी सर को, अब ये कानों के अंदर घुमा दे,
ये अंगूठा बच गया, इसे भी अपने सर पे टच नहीं किया, लगाया नहीं, ये आप कानों के पीछे गए। अब आपका ये हाथ बच गया, इस हाथ के बचने पे आप पीछे से दोनों को जोड़ लें, फिर लेके यहाँ पे ये आप यहाँ खत्म कर दें। क्या देखा होगा? अभी देखा जो आवाम में जाने वाले लोग हैं, उन्होंने तो देखा होगा, बाज लोग गलती करते हैं, इधर से मसा शुरू किया तो यहाँ यहाँ यहाँ। अभी कि ये गले का मसा नहीं करना, सिर्फ पीछे गर्दन का मसा करना, यहाँ हमारी गर्दन का हिस्सा ये हमारा गला है, और पीछे से लाए ये सीधा छोड़ दें ऐसा। ये क्या हो गया? ये आपकी गर्दन का मसा हो गया। अब आप उससे आगे चलें तो पाँव को धोने के लिए कोशिश ये करें कि बाज़ लोगों की पाँव की उंगलियां ना, हर एक का पाँव का स्टाइल एक अपना है, बाज़ लोगों की पाँव की उंगलियां बड़ी जुड़ी सी होती है, और सर्दियों पे तो ख़ास तौर पे वो बाज़ लोगों की उंगलियां ख़राब हो जाती हैं, जुड़ी जुड़ी सी हो जाती हैं। इन उंगलियों के अंदर ये एहतियात रखनी है कि पाँव की उंगलियों को छोटी उंगली के अंदर मार के तो उन तक पानी पहुँचा के पाँव को 3-3 बार धो लें। और अगर आपकी उंगलियां कुशादा बनी है, आप ऐसे कर रहे हैं, कुशादगी आ जाती है, तो तब ना भी आप उंगली से करें, लेकिन एक सुन्नत रह जाएगी, लेकिन आपका वुजू हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखें। मेरा मौजू चला गया, हुजूर के वुजू से वुजू चल पड़ा, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ये हदीस बयान करते हुए ये अल्फाज बयान कर रही है, और उनके हर अल्फाज के अंदर हिकमतें हैं, है कि नहीं है ना? ये बताने में हिकमतें हैं कि कभी ऐसा भी है कि आपके पास पानी थोड़ा है, आपसे 3-3 बार सारा कुछ नहीं होगा, या किसी और को वुजू की साथ जरूरत है, पानी उतना है, एक बोतल में आप मुसाफिर है, या घर में लाइट नहीं, पानी नहीं है, पानी उतना है कि एक बंदा वुजू कर सकता है, तो 3-3 बार धो के कोई कमियां छोड़ रही है अपने अंदर।